السلام علیکم. تشریف مائی یوٹیوب چینل لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. میں آپ کو نقلی اور جعلی عامل باباؤں کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کو کیسے پہچانے. ان کی 10 نشانیاں میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ جس عامل کے پاس آپ علاج کرانے کے لیے جا رہے ہیں یا چلے گئے ہیں وہ ایک نیک دیندار عامل ہے بھی یا نہیں. وہ آپ کا علاج یا آپ کے گھر والوں کا علاج شریعت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہا ہے یا نہیں. اگر کوئی عامل یا کسی بھی عامل میں اگر آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو 10 کام میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر وہ آپ کو بول رہا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی تو آپ سمجھ جانا کہ یہ عامل یہ بابا آپ کو شریعت کے مطابق یا قرآن و حدیث کے مطابق اور صحیح علاج شرعی علاج آپ کا نہیں کرنے والا ہے. چاہے پھر وہ کتنا بھی بڑا جبہ پہنا ہوا ہو یا اس کی 1 فٹ کی داڑھی کیوں نہ ہو یا اس کے آس پاس 10-20 چمچے کیوں نہ بیٹھے ہو یا لوگوں کی اس کے پاس بھیڑ کیوں نہ ہو یا وہ کسی مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو. ایک بات آپ یاد رکھیں کہ شیطانی طریقوں سے آپ کو علاج نہیں کرنا ہے. ہو سکتا ہے ایک آدھ بار آپ کی تکلیف کم ہو جائے یا ختم ہونے جیسی آپ کو لگے لیکن جہاں پر آپ کے ایمان و عقیدہ جو ہے بک جائے یہ سب سے مہنگا سودا ہے. تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ وہ 10 نشانیاں کیا ہیں. سب سے پہلے یاد رکھیں کہ یہ بیماریاں اللہ کی طرف سے ایک تو آزمائش ہوتی ہے یا سزا کے طور پر بھی آتی ہے یا ہمارے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے بھی آتی ہے. اس لیے بیمار کی اور بیمار کے سرپرستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صبر کریں, صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں کیونکہ اس بیماری پر بھی اللہ تعالیٰ اس بیمار کو اس مریض کو نیکیاں دیتے ہیں اور وہ بیمار اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے. ایسا کئی حدیثوں میں آیا ہے کہ جب بھی آپ بیمار سے ملنے کے لیے جاؤ تو اس سے دعا کی درخواست کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کی حالت میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. اس لیے علاج ضروری ہے, علاج کرنا بھی چاہیے لیکن بے صبری کے ساتھ نہیں کیونکہ بے صبری ہمیشہ غلط راستوں پر لے کر چلی جاتی ہے. جس طرح جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے جب ہم ہاسپٹل جاتے ہیں تو ہمیں وہاں بھی کچھ نقلی اور 2 نمبری اور فراڈ ڈاکٹروں سے پالا پڑ جاتا ہے جو کہ دھوکے باز ہوتے ہیں اور پیسوں کے بھوکے ہوتے ہیں. تو 2 نمبری ڈاکٹر 2 نمبری حکیم اور 2 نمبری دوائیاں یعنی نقلی دوائیاں بھی ہم کو وہاں پر دی جاتی ہے. ٹھیک اسی طرح روحانی علاج کرنے والوں میں اور جادو جنات کا علاج کرنے والوں میں یا تعویذ گنڈوں سے علاج کرنے والوں میں 2 نمبری عامل فراڈ مولانا اور فراڈ بابا بھی ہوتے ہیں. یہاں پر اچھے بھی ہوتے ہیں, ایماندار عامل اور ایماندار مولانا بھی ہوتے ہیں لیکن اس فیلڈ کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں فراڈ کرنے والے میکسیمم ہیں یعنی زیادہ ہے. نقلی اور جعلی اور جاہلوں کا یہاں ریشو کچھ زیادہ ہی ہے. میں آج اس ویڈیو میں نقلی عاملوں اور نقلی باباؤں کی 10 نشانیاں آپ کو بتا رہا ہوں. آئندہ ویڈیو میں میں صحیح عاملوں کی بھی آپ کو نشانیاں بتاؤں گا. کسی بھی بات کو انشاءاللہ چھوٹنے نہیں دوں گا. آپ صرف تھوڑا سا صبر کریں اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. سب سے پہلی نشانی, آپ جس کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں, نماز روزے سنتوں کا پابند ہے یا نہیں. اگر وہ دھڑ منڈا ہے, بے نمازی ہے, شریعت کا پابند نہیں ہے, سنتوں کا اہتمام نہیں ہے اور اس کی شکل و صورت سے نحوست ٹپک رہی ہے, اس کے پاس جاتے ہی آپ کو ڈر اور خوف جیسا لگنے لگے اور آپ کا ضمیر چیخ چیخ کر بولنے لگے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, آپ کا دل نہیں مان رہا ہے, تو سمجھ جائیے کہ کچھ گڑبڑ ہے اور وہاں سے آپ نکل جائیے. نمبر 2, جو عامل یا جو بابا آپ سے علاج سے پہلے آپ کی ماں کا نام پوچھے تو سمجھ جائے کہ یہ عامل یہ بابا قرآن و حدیث سے اور شرعی طریقے سے آپ کا علاج نہیں کرنے والا کیونکہ کسی بھی شرعی اور قرآنی علاج میں ماں کا نام ضروری نہیں ہوتا. یہ کوئی الگ شیطانی یا جناتی یا کاہنوں یا جادوگروں کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس میں ماں کے نام کی ضرورت پڑتی ہوگی
लेकिन शरई इलाज में कभी माँ के नाम की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी आमिल अगर या कोई बाबा आपसे माँ का नाम पूछे तो समझ जाइए कि ये 2 नंबरी आमिल है। नंबर 3, कोई आमिल कोई बाबा आपसे अगर आपके इस्तेमाल किए हुए कपड़े मांगे, यूज्ड कपड़े मांगे, जैसे कि दुपट्टा लाकर दे दो, या टॉप लाकर दे दो, या सलवार लाकर दे दो, या तौलिया लाकर दे दो, हमको उस पर कुछ दम करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ हिसाब करना है, तो आप समझ जाए कि आप गलत जगह पर आ गए हैं। ये कोई शरई इलाज करने वाला नहीं है, ये कोई कुरान से इलाज करने वाला आदमी नहीं है। आप वहां से बस निकलने की सोचिए। नंबर 4, अगर कोई बाबा कोई आमिल आपसे जानवर मांगे कि बकरा लेकर आओ, मुर्गा लेकर आओ, काली मुर्गी लेकर आओ, गोश्त लेकर आओ, या फिर इस गोश्त को ले जाकर वीराने में सन्नाटे में फेंक दो, या बगैर बिस्मिल्लाह के जानवर जुबा करके लाओ, या फिर जानवर का खून लेकर आपके जिस्म पर छिड़के, या इस तरह की कोई भी उटपटांग हरकतें करे या आपसे करवाए, तो आप समझ जाए कि ये कोई आमिल नहीं है या कोई कुरानी इलाज नहीं कर रहा है, ये कोई शैतानी तरीके से आपका इलाज करने वाला है। नंबर 5, कोई आमिल कोई बाबा ऐसा कोई मंत्र पढ़ रहा हो जो आपके समझ में भी नहीं आ रहा हो, या जिसके माना जिसके मतलब कोई पढ़ा लिखा आदमी भी समझ ना पाए, जो कुरान और हदीस की आयतें भी ना हो, तो समझ जाए कि ये बाबा बाबा नहीं है बल्कि शैतान का भाई है। नंबर 6, अगर कोई आमिल कोई बाबा आपको कोई ऐसा तावीज बना के दे जो आपको फोटो में दिख रहा है कि जिसमें सिर्फ खाने खाने बने हुए हैं, या कोई अजीब से नंबर लिखे हुए हैं, या अजीब अजीब तस्वीरें अजीब अजीब शक्लें बनी हुई है, या फिर आप किसी तावीज में आप देखेंगे जैसे आप फोटो में देख रहे हैं कि उस पर अल्लाह के दुश्मनों के नाम लिखे हुए होते हैं, जैसे फिरौन, हामान, कारून, अबू जहल, अबू लहब। ये तावीज आपको बना कर देते हैं इलाज के लिए और बोलते हैं इसको गले में लटका के घूमो, आप अच्छे हो जाएंगे। ये क्या तुक बनता है कि हम अल्लाह के दुश्मनों के नाम गले में लेकर घूमे, या बाजू में बांधकर या कमर में बांधकर घूमे? ये कौन सा इलाज है? आप समझ जाए ये कोई शैतान है, कोई जादूगर है जो बहुत सफेद लिबास में बैठा है और अच्छी खासी दाढ़ी उसने रखी हुई है, लेकिन ये शैतान है, जादूगर है, और ये कोई शरई इलाज आपका नहीं कर रहा है। नंबर 7, कोई आमिल कोई बाबा अगर आपको ऐसा इलाज बताए कि आपको 40 दिन तक लोगों से नहीं मिलना है, मैं ये तावीज दे रहा हूं, आपको 40 दिन किसी के घर भी नहीं जाना है, खास करके जहां पर मैयत हो गई हो, या फिर ऐसे भी घर में नहीं जाना है जहां अभी अभी बच्चे की पैदाइश हुई है, वरना फिर मेरा ये तावीज असर नहीं करेगा। और आपको 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन या 40 दिन आपको पानी से दूर रहना है, पानी को हाथ भी नहीं लगाना है, चाहे आप पर गुस्ल फर्ज हो जाए। इस किस्म की पाबंदियां अगर कोई बाबा कोई आमिल लगाता है तो समझ जाए कि ये इलाज कोई कुरानी इलाज नहीं है, कोई शरीयत वाला इलाज नहीं है, सही इलाज नहीं है। होशियार हो जाए। ऐसे लोगों से इलाज कराने में बीमारियां और परेशानियां मुसीबतें कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती हैं। नंबर 8, कोई आमिल कोई बाबा अगर आपसे ये कहे कि ये तावीज ले जाकर कब्रिस्तान में लटका देना है, या किसी वीराने में किसी दरख्त पर जाकर इसको लटका देना है, या कहीं फेंक देना है, या कहीं दफन कर देना है, या कोई आपको कहे कि इसको धुनी दे दो, यानी इसको जलाना है, याद रखे ये धुनिया ये हांडिया जलाना ये कोई शरई इलाज नहीं है, ये सब शैतानी तरीके हैं, कुरान और हदीस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 9, अगर कोई आमिल या कोई बाबा आपसे कोई ऐसी चीज डिमांड करे जो आम तौर से आसानी से नहीं मिलती, दुकानों पर नहीं मिलती, जैसे हिरन की कस्तूरी लेकर आओ, हिरन की खाल लेकर आओ, शेर की चर्बी लेकर आओ, फलाने जानवर के नाखून लेकर आओ। अब ये चीजें आमतौर से दुकानों में मिलती नहीं है, आसानी से मिलती नहीं है, और अगर मिल भी जाए तो महंगी मिलती है। 20,000, 40,000, 50,000, 1-1 लाख रुपए तक वो चीजें मंगवा लेते हैं। हालांकि इनसे उनको कोई काम नहीं होता है, ये उनका एक साइड बिजनेस होता है। वो क्या करते हैं कि वो सब चीजें आपके पास से ले लेते हैं और आपको बेवकूफ बना देते हैं कि हमने उस पर इलाज कर दिया, आपका हो जाएगा, जो भी है बोल देते हैं। फिर वो चीजें वो बाहर बेच देते हैं, मार्केट में बेच देते हैं, महंगे दामों पर बेच देते हैं।
और अगर कोई नया मरीज, नया बीमार आता है, नया कस्टमर आता है, ये उनके लिए कस्टमर है। आप तो बीमार हैं, आप परेशान हैं, लेकिन उनके लिए आप कस्टमर हैं, तो फिर आपसे भी वही चीजें डिमांड करेंगे। फिर अगर आप बोलते हैं या उनमें से कोई अगर ये बोलता है कि बाबा वो चीजें कहाँ मिलेंगी, बड़ी मुश्किल है, हम कहाँ से लाए, तो फिर वो बाबा क्या करते हैं, अपने ही किसी चमचे का एड्रेस या नंबर दे देते हैं कि आप जाओ, उनके पास मिलेगा। फिर वो वहां से पैसे देकर लेकर आते हैं, फिर ये वापस वहां पहुंचा देते हैं। ऐसा इनका साइकिल चलता रहता है और ये लाखों रुपए लूटते रहते हैं, कमाते रहते हैं। जो कोई आमिल, कोई बाबा अगर आपसे कोई ऐसी अनोखी एंटिक चीज आपसे मांगे तो समझ जाए कि ये कोई बाबा नहीं है, कोई आमिल नहीं है, ये बहुत बड़ा लुटेरा है। वहां से आप भाग जाए। नंबर 10, अगर कोई आमिल, कोई बाबा औरतों को टच करके, औरतों को हाथ लगा के इलाज कर रहा है, या कोई मालिश करने वाला अमल कर रहा है, या बोल रहा है कि ऐसी मालिश करनी पड़ेगी, तो खतरे की घंटी है। ऐसे बाबाओं से, ऐसे आमिलों से खुद भी बचें, अपनी फैमिली को बचाएं और अपने माँ बहनों को और बीवियों को इन खबीसों से बचाएं। ऐसा कोई इलाज हो ही नहीं सकता कि जो किसी नामहरम को टच करने का बोले या हाथ लगाने का बोले। शरीयत तो देखने को भी मना करती है, तो ये हाथ लगाकर या मालिश करके कौन सा इलाज होता है? ये सब फ्रॉड है, ये सब धोखा है, फरेब है। ऐसे कई आमिल, ऐसे कई ढोंगी बाबा जेल की हवा खा रहे हैं और रेप की सजाएं काट रहे हैं। तो ऐसे अगर बाबा आपको मिल जाए या ऐसे आमिल के पास आप गलती से, धोखे से पहुंच जाए, तो उल्टे पांव भागे आप वहां से। आप थोड़े दिन बीमार रहेंगे, वो अच्छा है कि आप अपने ईमान का, अपने अकीदे का और अपनी इज्जत का सौदा कर देंगे? हरगिज नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये 10 निशानियां आपको जिंदगी में बहुत काम आएगी। अब बात आती है कि फिर अगर ऐसी कोई तकलीफ हो जाती है तो हम क्या करें? तो आप हमसे जुड़े रहें। मैं आपको हर चीज, पहले इसकी हकीकत पे रोशनी डालूंगा कि ये होता है या इस तरह के बीमारियां होती है, इस तरह के असरात होते हैं तो कैसे होते हैं, और इसका आसान इलाज क्या है, कुरान की वो कौन सी आयतें हैं, वो कौन से वजीफे हैं कि जिससे हम घर बैठकर भी इन चीजों का इलाज कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। तो आप हमसे जुड़े रहें। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।